Moreover, City CDRA, in partnership with ILO, is also working towards creating awareness about fundamental principles and rights at work and occupational safety and health among the Indian cotton growing community, with a focus on small and marginal farmers and workers. This partnership also enhances access and utilization of social protection schemes and programs and empowers vulnerable families engaged in cotton cultivation. I'd also like to share that City CDRA is the single largest implementing partner in the pilot project on cotton, a joint initiative of the Ministry of Textiles and the Ministry of Agriculture to boost cotton productivity in PPP mode. Building on our extensive experience and wide network across the cotton growing regions, we look forward to continuing this partnership with the government under the mission on cotton productivity. The Indian textile and apparel industry greatly welcomes the government's visionary initiatives such as Kasturi Cotton Bharat, which embodies India's unwavering commitment to purity, quality, and sustainability. On this occasion today, Texprosil, along with key industry partners, will also formalize MOUs for Kasturi Cotton Bharat, reaffirming our shared dedication to promoting quality, sustainability, and full traceability across the cotton value chain. As we celebrate today, let us reaffirm our collective resolve to make India's cotton sector a model of innovation, sustainability, and inclusiveness. Together, we can ensure that cotton remains not only a source of livelihood, but also a force for positive change, from farm to fashion, from India to the world. To conclude, I once again thank our Honorable Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh Ji, and all the officials from the Textile Ministry for joining us here today. Thank you. Thank you, sir, for sharing your insights and vision for the cotton sector. Next, we have a presentation on the contribution of Cotton Corporation of India towards empowerment of cotton farmers and cotton productivity by Shri Lalit Kumar Gupta, CMD, CCI. Thank you, ma'am. Honorable Union Minister of Textile, Shri Giriraj Singh Ji, Madam Secretary Textile, Srimati Neelam Shamilawati, Joint Secretary, Madam Padmini Singla Ji, Shri Ashwin Chandran Ji, Chairman City and CMD Report Limited, Shri Ravi Sen, Vice Chairman Texprosil, Shri Dinesh Nolakia Ji, Deputy Chairman City, all present delegates, ministry officials, scientists, speakers, media, guests, ladies and gentlemen, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा जो प्रेजेंटेशन का विषय है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ CCI फॉर एम्पावरमेंट ऑफ कॉटन फार्मर्स and the cotton productivity. This is just overview of the cotton situation of 24-25 this is the current season. Last year हमारा 112 लाख हेक्टेयर में कॉटन का सोइंग हुआ था और क्रॉप का साइज 307 लाख बेल के करीब उत्पादन हुआ है और इस वर्ष लगभग 110 लाख हेक्टेयर में कॉटन की बिजाई हुई है और हालांकि प्रोडक्शन का एस्टिमेट अभी आना बाकी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार बारिश हो रही है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आदि कुछ एरियाज में डैमेज की खबरें आ रही हैं और उसका अनुमान थोड़े समय में उसमें आ जाएगा। इस वर्ष भारत सरकार ने लगभग 8% MSP का प्राइस इंक्रीज किया है और CCI एज ए नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, we have the network in all the 11 cotton growing states with 15 procurement branches. Next. आप सभी जानते हैं चैलेंजेस आज सुबह भी डिस्कस हुआ ही था और लो प्रोडक्टिविटी हम
443 किलोग्राम के हैं, जबकि वर्ल्ड का जो 780 किलोग्राम मीट का उत्पादन होता है। रेनफॉल, पेस्ट अटैक, क्लाइमेट रिस्क, हाई लेबर कॉस्ट, lack of mechanization, trash contaminants, and also the best farm practices जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो सक्सेस स्टोरी है वर्ल्ड के अंदर, हम उसमें काफ़ी अभी पीछे हैं। माननीय हमारे मंत्री जी अकोला को एक सेचुरेशन मोड में ले जाने का उन्होंने सपना देखा और वहाँ के जो रिजल्ट हैं, उत्पादन डबल से भी अधिक की संभावना है उसी सीड वैरायटी के साथ। तो मुझे लगता है अगर हम जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो, क्लोजर स्पेसिंग हो और अच्छी फार्म प्रैक्टिसेस करें तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं इमीडिएट अच्छे आ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा आप जानते हैं CCI भारत सरकार का जो MSP स्कीम है उसका सॉवरेन फंक्शन को अंडरटेक करता है। यह एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। जब भी कपास के प्राइसेस भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर उससे कम जाते हैं तो हम उसका खरीदी मार्केट में करते हैं। CCI ने पिछले माननीय वस्त्र मंत्री जी के एबल लीडरशिप और हमारी सेक्रेटरी मैम और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की गाइडेंस में हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस साल एक्सटेंसिव यूज किया है और मोर देन 12 इनिशिएटिव्स हमने इसमें लिए हैं, जो कि हमारी खरीद को ट्रांसपेरेंट करना, फार्मर्स, रियल फार्मर को उसका बेनिफिट लेके जाना, प्रोसेसिंग में सुधार हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और ये सभी ऑपरेशंस पूरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ हो, सिस्टम ओरिएंटेड हो। इसमें हमने काफ़ी काम मार्गदर्शन में किया है। फिर भी थोड़ा सा आपको प्रोसेस में क्विकली आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, इस वर्ष हमने कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें सभी फार्मर पहले घर पे ही बैठ के कहीं से भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेट करके और अपना लैंड डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर सकता है। राज्य सरकार उसको अप्रूव करती है और जिन राज्यों में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड है वो डाटा हमको ऐप पे API के माध्यम से ट्रांसफ़र किया है। लगभग 20 लाख फार्मर का डाटा हमारे पास अभी तक आ चुका है और 60 लाख फार्मर्स हैं जो बाकी अन्य राज्य हैं, उसमें फार्मर्स 31 अक्टूबर तक उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था है कि फार्मर अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जो सेंटर पे नियरेस्ट वो ले जाएगा और फैक्ट्री प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वो ओपन रहेगी और उसमें कपास ले करके उसको, ताकि क्यूज़ ना रहे और समय पर उसकी खरीदी हो, बिना 1-2 दिन उसको वेट ना करना पड़े, यह व्यवस्था की गई है। मार्केट यार्ड में कॉटन आने के बाद उसकी क्वालिटी असेसमेंट मॉइस्चर मीटर्स के माध्यम से उसकी माइक्रोनियर और स्टेपल लेंथ को साइंटिफिक असेसमेंट करके अगर वो FAQ है तो उसका अनलोड करके उसका पेमेंट किया जाता है और 3 डॉक्यूमेंट, बिडिंग स्लिप, पेमेंट नोट और तटपट्टी उसका तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जनरेट होता है। उसका कोई हार्ड कॉपी नहीं है, सिग्नेचर वाला का बायोमेट्रिक सिस्टम से व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कि हर एक बिल पे जो फार्मर आता है उसकी लाइव पिक भी उसमें कैप्चर की जाती है। OTP के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस होता है ताकि MSP का पूरा बेनिफिट रियल फार्मर के पास जा सके। पहली बार देश के अंदर हमने एक सेंटर ओपनिंग करने के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स सेट किए हैं, जिसमें अगर किसी भी एरिया, मंडल, तालुका, तहसील में 3000 हेक्टेयर अगर सोइंग हुआ है और कम से कम एक जिनिंग प्रोसेसिंग अगर वहाँ फैसिलिटी है और फंक्शनल मार्केट या जो स्टेट रेगुलेट करता है उनकी प्रेजेंस है, तो वो सभी हमने केंद्र खोल दिए। जो केंद्र एलिजिबल नहीं थे उनको बंद किया गया है और पिछले साल के 500 के अगेंस्ट 550 सेंटर पूरे भारतवर्ष में ओपन कर दिए गए हैं ताकि छोटे से छोटे एरिया में भी हमारी रीच किसानों तक हो। नेक्स्ट, स्लॉट बुकिंग का मैंने ब्रीफली आपको बताया है। इसके साथ साथ रिड्रेस, कंप्लेंट हो, ग्रीवेंस हो, उसको हमने काफ़ी सुदृढ़ किया है। लोकल लेवल पर राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक APMC में व्हाट वी कॉल लोकल मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने हेल्पलाइंस नंबर और हमारी प्रत्येक ब्रांच पे व्हाट्सएप डेडिकेटेड हेल्पलाइन दी गई है और डेडिकेटेड पर्सन जो लोकल लैंग्वेज को जानता है उसको वो उस पर उपस्थित रहेगा और उस कंप्लेंट या कोई भी मैटर आते ही वो 2 मिनट के अंदर
उसका रेजोल्यूशन की भी हमने SOP बनाया है, ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड और उसका एड्रेस कब कितने देर में हुआ है वो हम उसको इमीडिएट उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट, बिलिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑनलाइन जनरेट होते हैं, और ये ऑनलाइन जनरेट होने के बाद ब्रांच को भी एक वर्किंग डे के अंदर हमारे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। उनकी जांच जो भी ब्रीफ में करनी है वो करने के बाद पेमेंट किसान के खाते में आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से 2 से 3 दिन के अंदर वो पेमेंट हो जाती है। किसान को जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसका SMS जाना, बिल जनरेट हुआ उसका SMS जाना, और पेमेंट होने के बाद उसकी भी कंफर्मेशन उसको जाए मिले, ये व्यवस्था भी की गई है। और कपास किसान मोबाइल ऐप के अंदर भी वो पेमेंट को अपनी ट्रैक कर सकता है। MSP हो, पूरा नेटवर्क हो, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन MSP से रिलेटेड पोर्टल से संबंधित हो उस पर उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट, जैसा भी मिस्टर अश्विन चंदन साहब ने बताया कि सिटी और भारत सरकार के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट 23-24 में जो हमारा DAG ग्रुप है उसके डिस्कशन उसके बेस पर इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, और लगभग 8 राज्यों में लगभग 10,000 फार्मर को डायरेक्ट इंटरवेंशन उसमें सपोर्ट दी गई थी। 23-24, 24-25 और उसकी 25-26 में भी उसको एक्सटेंड किया गया है। और इसके जो आउटकम्स हैं, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल हाई डेंसिटी प्लांटिंग का दिया, उसकी जो आउटकम है उसके बेस के ऊपर जो मिशन ऑन कॉटन प्रोडक्टिविटी है, जो मेजर उसी एक पायलट के बेस पर उसकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बेस पे उसको लार्ज करके लार्ज स्केल पर सभी राज्यों में लैक्स ऑफ फार्मर्स को उसका पहुँचे, यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। इसमें 3 मिशन है, मिनी मिशन 1, 2 एंड 3। मिनी मिशन 1 जो ICR, CICR और डेयर दोनों मिलकर के उसमें फार्मर की कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल कॉटन को, और बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे किसानों को मिले, क्लाइमेट रेसिलिएंट सीड का, प्रिसिशन फार्मिंग हो, प्रैक्टिसेस मैकेनाइजेशन, वो सभी उसके अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी। और मुझे खुशी होती है माननीय हमारे मंत्री जी और उनकी ग्रेट एफर्ट्स के बाद जो 2500 करोड़ का अनाउंस किया गया था, अभी जो वर्किंग चल रही है वो 5,900 करोड़ के ऊपर टोटल बजट के आंकड़े के साथ बातचीत आगे चल रही है, और जो भी मॉडलिटीज़ है उसका SOP अभी बन रहा है। मिनी मिशन 2 और 3 वस्त्र मंत्रालय के अधीन, उसमें मिनी मिशन 2 जो ऑगमेंटिंग दी सप्लाई ऑफ क्वालिटी कॉटन, कस्तूरी कॉटन को आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बेल का उत्पादन हो, उसके अंदर उसकी व्यवस्था की जा रही है। और मिनी मिशन 3 जो माननीय मंत्री जी का एक अदर नेचुरल फाइबर और जैविक हो, उसके ऊपर वो काफ़ी उसमें काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक मिनी मिशन 3 जो कि बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। कस्तूरी कॉटन, जैसा आप जानते हैं, हम 3rd ईयर ऑफ कस्तूरी कॉटन के प्रोडक्शन में एंटर कर चुके हैं, और CCI ने लगभग 95-96% जो कस्तूरी कॉटन का प्रोडक्शन पिछले 2 साल में हुआ है उसका किया है, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी मैम की गाइडेंस में हम इसको सब्सटेंशियली कस्तूरी कॉटन के उत्पादन को इस साल करेंगे, इसके लिए उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, मैंने जैसे बताया कि CCI ने 2 पायलट प्रोजेक्ट फ्लोरिकल्चर बेस्ड कंपेनियन प्लांटिंग हो 3 राज्यों में हमने कुछ फील्ड को अडॉप्ट किया है, वहाँ पे मिल्क वीड की कल्टीवेशन हमने की है, उसके प्लांट डेवलप चल रहा है, ताकि उससे पता लगे कि फार्मर को कैसे उसकी फार्मर को इनकम को भी बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ अदर नेचुरल फाइबर को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं उस पर एक रिसर्च की तरह, और इसको हम आगे उसमें बढ़ रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो सभी बातें आपको जैसे टेक्नोलॉजी का बताया, उसके साथ साथ जो 23-24 से हमने जितनी भी कॉटन बेल्स हमारी बनती हैं वो 100% ट्रेसेबिलिटी, वी हैव ट्रेसेबिलिटी राइट फ्रॉम द फील्ड, उसको करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो स्लॉट बुकिंग को अभी आगे बढ़ाया है, इसके काफ़ी फायदे और काफ़ी कुछ हमारी प्लानिंग है उसमें आगे बढ़ने में, क्योंकि अगर कॉटन विद इन द डिस्ट्रिक्ट आती है तो होमोजिनिटी ऑफ कॉटन इम्प्रूव होगा, उसके साथ ट्रेसेबिलिटी जो मिक्सिंग है वो कॉटन नहीं होगा, तो वो एक हम आगे लेके जाएंगे।
इसको हम आगे और ऐप को आगे बढ़ाएंगे कि सीड की क्या क्वालिटी यूज़ की गई है, कैसे हम वो जो सीड डिफरेंट अगर फार्मर यूज़ करते हैं उसको कैप्चर करें, उनकी मैपिंग करें, उनके लिए एक अलग फैक्ट्री में माल को और सीड वाइज हम उसको लेके जाएं आगे फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग करेंगे ताकि क्वालिटी जो है वो बेस्ट हम इसमें बना सकें। हमने 1 जुलाई 2025 से हमारे पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स हमारे बायर्स को भी अब हम खरीदी से लेकर के सेल्स तक पूरे पेपरलेस मिले यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी आज खरीद की जाती है, खरीद करने के बाद लॉट की ऑफरिंग हो, सिलेक्शन हो, एग्रीमेंट साइन हो, पेमेंट गेटवे हो और इनवाइस डिलीवरी ऑर्डर सभी ऑनलाइन कर दिया गया है, लेजर एक्सेस हो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी ईजी हमने कर दिया है। तो CCI भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हमारा एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पूरी वैल्यू चेन को और फार्मर जो भारत सरकार पे निगाह रखता है कि उनको बेनिफिट अच्छे से अच्छे मिले, उसको हम सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for highlighting the important work being done by CCI and to empower farmers and enhance productivity. I now invite Shri Ravi Sam, Vice Chairman Texprocel, to deliver his address. Honorable Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh Ji, Madam Neelam Shamira, Secretary Textiles, Mr. Manish Singla, IAS Joint Secretary, CD Chairman, Vice Chairman and CCI Chairman, dignitaries and other participants, Namaste and good evening. It's a matter of great privilege to join you all on the special occasion of World Cotton Day, celebrated every year on the 7th of October. On behalf of Texprocel, I extend a warm welcome to all present and express our gratitude to the Ministry of Textiles and City for bringing together every segment of the cotton ecosystem under one roof today. Cotton has always held a special place in India's history. From being a fabric of freedom movement to becoming the backbone of our textile economy, cotton sustains millions of farmers, workers and entrepreneurs across the country. India today is the second largest producer of cotton in the world, with an integrated value chain that spans farming, ginning, spinning, weaving, knitting, apparel, home textile manufacturing. This sector supports the livelihood of over 50 million people, a reminder that the future of cotton is deeply intertwined with the well-being of our rural communities. Yet we cannot ignore the challenges before us. Our yields remain below global average. We continue to face issues of quality, consistency, contamination, and climate-related stresses. At the same time, the world is demanding traceability, responsibly grown and high-quality cotton, creating new opportunities for us. To seize these opportunities, we need to invest in better seeds, improve farming practices, mechanization technology and research, and above all, we must all work together across the entire value chain. It is in this context that the Kasturi Cotton Initiative takes on a great significance. Kasturi Cotton is more than a label. It is a national commitment to the premium, pure and sustainable Indian cotton. By ensuring traceability from farm to fabric, Kasturi Cotton offers global buyers the assurance of quality and the responsibility that the market demands today. I am happy to note that important MOUs are being signed today under the Kasturi Cotton Program to mark the World Cotton Day, spanning commercial production, community support and counseling. These partnerships between organizations representing farmers, ginners, spinners, garment manufacturers
will help build a strong and more credible Indian cotton identity in the domestic and global markets. A senior colleague once said that the strength of Indian cotton lies not in the fiber alone, but in the collective will of its people. Farmers who nurture it, scientists who improve it, entrepreneurs who add value to it, and policymakers who support it. I believe this is truer today than ever before. By working together, we can bridge productivity gaps, enhance quality, and establish India as the most trusted source for premium cotton textile worldwide. Texprocil, as an international face of Indian cotton textile sector, is fully committed to this journey. We will continue to work closely with the government, with all the stakeholders to promote exports, competitiveness, quality standards, and market diversification. The most importantly, we see the success of Kasturi cotton as a pathway to greater income for our farmers and more opportunities for our industry. As we celebrate World Cotton Day, let us remind ourselves that cotton is not just a commodity. It's a source of livelihood, identity, and pride of our nation. By embracing the quality, sustainability, and traceability as a non-negotiable principle, we can ensure that the Indian cotton reclaims its place as a global benchmark for excellence. Honorable Ministers, respected secretaries and friends, the road ahead is challenging, but it's full of promise. With your continued guidance and with the collective effort of everyone gathered here, I am confident that India can once again lead the world in cotton. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable perspectives on the cotton industry. Now we are honored to have a special address by Ms. Neelam Shami Rao, IAS, Secretary, Ministry of Textiles. माननीय केंद्रीय मंत्री वस्त्र विभाग श्री गिरिराज सिंह जी, सिटी टेक्सप्रोसल के पदाधिकारी, मेरे सहयोगी सुश्री पद्मिनी जी एवं कॉटन कॉर्पोरेशन के CMD श्री ललित गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद महानुभाव, dignitaries, ladies and gentlemen, I congratulate you all on the 4th World Cotton Day. 4 years back, when the UN resolution happened, it was all about bringing alive the deep connection with the livelihood, sustainability and innovation. And primarily, how to see that the fiber is alive. And when I talk about it in terms of cotton, fiber is really alive. Unlike many other fibers, this one truly breathes. It has a strength, it has absorbency. So the beauty of cotton, the beauty of kapas, and in India we would in Pali normally call it kapas in the past, and in Sanskrit as karpas, is immense. It's not only the feel of the fabric or feel of the fiber, but also the varieties that have come from this country. Our muslins, our calicos, our sheets, they have transcended borders, made the mark, and driven the fashion in the European and English markets in the earlier centuries, and it continues to do so. I'm glad to note that this platform is not merely the collection of people and listening to the dialogues, but there has been a fruitful seminars earlier in the first day.
lot of discussion around the way we can move on cotton in this country. आप सबको यह भी मैं बताना चाहती हूँ, India produces almost 1/5 of the cotton of the world, and that's why we remain one of the most reliable and prime markets and prime producers of the cotton. And the cotton is also a good quality cotton in many aspects. Our own inherent seeds of soils and the old extra long staples tend to drive the spirit of muslins, calicoes and shills that we have produced in the world. So what is that we are doing more about cotton? Today is the time to reflect about it. In fact, I would really like to say that मैं पिछले दिनों जब हम लोग पूरा एक डेलीगेशन लेकर के यूके के साथ में बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे ट्रेड का विस्तार हो, किस तरीके से हमारी बातचीत हो. So one of the key things which came in, and there was a lot of discussion about कस्तूरी cotton. और मुझे जानकर के इतना हैरानी हुई कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमको कस्तूरी कॉटन we have to increase, we have to expand. And is there a demand? That's the question which is always in our heads. Are people ready to pay that kind of a premium which would come with कस्तूरी? पर जिस तरीके की वहाँ पर उत्साह है, जो लार्ज स्टोर फॉर्मेट्स हैं, जो सोर्सेस हैं और उनकी रुचि है, वो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कस्तूरी कॉटन के प्रोडक्ट्स किस प्रकार से आ सकते हैं और किस प्रकार के MOUs विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के हों, चाहे उनके कॉटन इनिशिएटिव्स के हों, वो टेक्स प्रोसेस के साथ मिलकर के कर सकते हैं. So this is also an opportunity for us to reflect and look at the format and particularly to tax process and the ministry collectively to see that how we can improvise and improve on the quality of cotton further, to look at our own standards and see that is there a room for further taking on the needs of the other customers and drive MOUs in the direction of Kasturi and Kasturi Plus. It's been a great learning while doing the Kasturi project for the last few years. And ministry has now more or less, along with text process, formulated and has come to a kind of, there has been a general demand that there is a need to come up with a clear regulations around the Kasturi so that it sort of provides for a certain element of credibility, much more beyond than what is presently on the next. What does Kasturi provide? The traceability. And why is traceability so important? Basically to ensure and give that reaffirmation that the sources from which it has been picked up have been aligned to the laws of the land, they have been aligned to the good initiatives around sustainability, and they have been aligned to the ways and means which promotes the quality. Country has moved forward beyond Kasturi, और आप सब जानते हैं कि इस साल के बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक घोषणा है वो हमारा कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का है. This cotton productivity mission would provide the pillars and the foundation and the strength to take forward the work which we have been doing with the industry and the work that agriculture has been doing with the farmers. To bring it together in terms of both quantity and quality. So it addresses the two-pronged strategy and thereby the kapas, the kisan and the karkhan. Three of the Ks are extremely important when we are
working on to the rules of cotton productivity mission. यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों में और सर इसको बड़ा पैशनेटली हम लोगों को इसके बारे में बताते भी हैं, और ये एक तरीके का सीख होता है विभाग मंत्रालय के पास। जब वो अकोला के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, खासतौर से हाई डेंसिटी प्लांटेशन की और किसानों की उपज को बढ़ाने की, उनके बारे में बातचीत होती है, और उसके विस्तार को करने के लिए, एक्सपांशन को करने के लिए, उसके अलग अलग जगहों में लेने के लिए कि कैसे ले जा सकते हैं, ये समझ पैदा होती है। तो शायद निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का रास्ता और बेहतर और ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनता है। साथ ही ये भी हम लोगों को शायद हल मिल रहे हैं कि जहाँ हम दक्षिणी राज्यों में HDPS के साथ में काम करें, वहीं दूसरी विधाएं जो क्लोजर स्पेसिंग कैपिंग हो, उनको लेकर के नॉर्थ इंडिया में काम करें, जिससे कि किसानों की आय में इजाफा होने में मदद मिल सके। और स्वाभाविक है, इससे किसी भी कैश क्रॉप या किसी भी कॉमर्शियल क्रॉप को ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए रुचि बढ़ती है। And when we do this, we also need to invest our energies on better farming practices, and also the support to the farming community and the labor that is working along the side of the farms. So better plucking machinery, equipment, tools that need to come in, better practices, better gears, better gloves, and the caps and the mask to be provided to the farmers becomes equally important. Government continues to spread the awareness about these issues. So today is the day to reflect about the expansion of cotton all around the world, but more so in India. We are currently at 20% of the world's produce, and we want to further increase it almost 50% by current 5.5 million metric ton to another 7.5 million metric ton in the next 5 years. We also want to see that our quality parameters are stronger, and one of the key goals that we look at is reducing the current levels of contamination to less than 2.5%. We also want to see that कस्तूरी कॉटन जो अभी 1 लाख बेल्स हैं, वो कैसे बढ़ करके 10 लाख बेल्स अगले सालों में हो पाती है। और साथ ही हमारे कॉटन से बने हुए ब्लेंड्स और उसके नई रेशे जो अलग अलग नई किस्में जो हैं और नई क्रॉप्स जो हैं, जिनके ऊपर नए फाइबर्स के साथ हम इसका मिलान कैसे करके बेहतर प्रोडक्ट दुनिया को दे पाते हैं, और अपना बाज़ार जो विश्व का बाज़ार है, वैश्विक बाज़ार है, उसमें भारत के कपास के प्रभुत्व को बनाए रख सकते हैं। खासतौर से इसलिए भी कि यदि हम अपने एक्सपोर्ट बास्केट को देखें तो उसमें कॉटन का एक सबसे बड़ा हिस्सा कॉटन के बने हुए प्रोडक्ट्स का ही है। So on this backdrop, again let me congratulate all of you. I would particularly want to congratulate City Sidra project, and it needs to expand its wings further. That would be my ask from them. We need to go beyond 10,000 farmers, and we need to go to many more districts of the country. How does that happen, and what can be the alliances that can be formed? Similarly, as I said, Texprocel needs to up its ante from the current 1 lakh bales to the 10 lakh bales in the next season, and see that there is not only the demand for Kasturi cotton in the national market and the brands pick it up, but also internationally we establish it as the global name for Indian cotton. And Cotton Corporation, which provides support to the farmers on minimum support price and procures from them, and you heard
the CMD recently that he has brought in many reforms this year, mostly to see that the systems are transparent, but also that the expansion of the procurement centers and transparency that has been built around the system is to ensure that the farmers have a choice to make to go to whatever ginning factory they think is appropriate for them, and also to fix the dates on which they would want to, and the payments could be made to them as early as possible. These are the three fundamentals on which they have continued to build on the reforms. So I look forward to positive responses from the three partners of today, and Ministry will be supporting all the endeavors around the cotton. Cotton हमारा एक तरीके से मूलभूत फाइबर्स में से है, और देश का अगर फाइबर्स का पूरा विश्लेषण देखें तो उसमें कॉटन का प्रभुत्व हमेशा से रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको निकट भविष्य में भी कोई चेंजेस इसमें दिख रहे हैं। जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए, उसकी विशेषताओं को और प्रीमियम को स्थापित रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है, जो भी सुझाव है, उन पर निरंतर सब लोग और सब संस्थाएं मिलकर के काम करती रहें। Let's spread the beauty of the fabric and continue to establish it in the foremost markets of the world as Indian Kasturi cotton. Congratulations to all of you again on World Cotton Day. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful words and guidance. It is now time for the keynote address by our chief guest, Shri Giriraj Singh, Honorable Union Minister of Textiles, Government of India. ये सेशन आप लोगों के लिए बोर करने वाला सेशन है। आप लोग इस सेशन में पूरी तरह बोर हो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। मैं अश्विन जी से बात कर रहा हूँ। 5 सेशन हुआ, इसके पहले उसमें आप लोगों ने 2 वे डिस्कशन था। अच्छा, सवेरे से लेके शाम तक अभी तक कौन कौन लोग हैं? तब तो बोर होना स्वाभाविक। चलिए, सबकी नींद खुल जाएगी। भारत माता की जय। जब कॉटन पर जय इतना कम आवाज होगा तो कॉटन बढ़ेगा कैसे? भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज कॉटन दिवस के अवसर पर, विश्व कॉटन दिवस के अवसर पर मैं मंच पर आसीन, हमको लगा के 7-6 अभी बैठे, दिनेश जी को भी धन्यवाद लेना। हमारी विभाग के सेक्रेटरी सचिव श्रीमती नीलम शमी राव जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती पद्मिनी सिंगला जी, CMD CCI श्री ललित कुमार गुप्ता जी, और जो इसको ऑर्गेनाइज किए हैं सिटी के चेयरमैन अश्विन चंद्रा जी। अभी तक राकेश जी से मिलते थे, अब चंद्रा जी से मुलाकात होगी। दिनेश नौखा जी, वाइस चेयरमैन, और
टैक्स काउंसिल के वाइस चेयरमैन मानवर रवि जी और उपस्थित सभी स्टेक होल्डर, एक आध किसान को भी मैंने अकोला का देखा था, हाँ है ठाकरे। ये आज जो हम विश्व कॉटन दिवस मना रहे हैं, इसमें भी भारत की अहम भूमिका है, जबकि कॉटन पूरे दुनिया में जब सिंथेटिक का कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपने सिस्टम में नहीं लिया। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो 2019 में इसकी यात्रा शुरू हुई और 21 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा में विश्व कॉटन दिवस, कपास दिवस मनाने की मान्यता दी। इसलिए मैं अपने ही देश के प्रति आज सबों को धन्यवाद देता कि इसके हमें लोग नेता और प्रणेता हैं। आपने सारी चीजें को सुना, अब रटी रटाई हुई चीजों को मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहेंगे जो सेक्रेटरी बोली वही ये भी बोलेंगे। और इस बार का थीम है जिस पर आप 4-5 सेशन चला, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, कॉम्पिटिटिवनेस। अब इस थीम में हमारे टेक्नोलॉजी पर भी CCI के सारे लोगों ने बोला, क्लाइमेट पर भी बोला कि आज बारिश हो रही है सभी राज्यों में, दक्षिण से लेके उत्तर, उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम, क्योंकि हम सब चीज पे ध्यान देते हैं, क्लाइमेट पर नहीं ध्यान देते हैं। हम समझते हैं वो तो भगवान का है, वो उस पर हमारा कोई लेना देना। लेकिन मैं यहां बैठे लोगों से कहूंगा, क्या इस क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, इसको अस्थिर करने के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं क्या? अगर हैं, जो लोग समझते हैं वो हाथ उठाएं। बिल्कुल सही। मैं क्लाइमेट चेंज पर थोड़ा सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक अर्थ ओवरशूट डे मनाता है जुलाई में। ये मनाना शुरू किया था 1971 से, दिसंबर से। तो कहिए ये चेंज होकर के कैसे आ गया? जैसे आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, उसी तरह से विश्व जो यूनाइटेड नेशन है, पूरे दुनिया का जो क्लाइमेट की स्थिति है, जो प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों ने इतने दोहन किया, यूज नहीं किया,
पैसा है, अगर वो 6 महीने पहले खर्च हो जाए तो क्या होगा? हर साल घटते घटते, माने ये 71 से जर्नी चल के अभी जुलाई को मनाया गया, हो सकता है अगले बार जून आ जाए। इसमें हम सभी उसके भुक्तभोगी भी हैं और इस स्थिति को पैदा करने वाले। ये बात अलग है। इसमें हमारे कॉटन पर भी बड़ा प्रभाव डाला, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बारिश हो रही है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। इसके लिए हम सब भागीदार हैं और भागीदार बड़े बड़े चीजों के लिए तो विकसित राष्ट्र है जिसने पूरा कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन भारत में रहने वाले लोग हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि घर में, ऑफिस में, बाथरूम में, किचन में, रूम में, बेडरूम में जलते हुए बल्ब को हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। छोड़ देते हैं ना? ये हमसे भी गलती होती है, मैं तो इसको स्वीकारता हूं, लेकिन यहां बैठे हुए सभी लोगों से गलतियां होती हैं। 1 यूनिट बिजली खर्च होती है तो 6 से 7 किलो कार्बन। अब समझिए, ये फैक्ट्री होगा, अब सेंसरशिप आ गया है, सूता टूटा तो रुक गया। अब ऑफिस से लेके घर तक भी हम केवल अपने बिजली के खर्चे को नहीं बचाएंगे, बल्कि ये रोएंगे नहीं। आज देखिए ना, क्लाइमेट का ये स्थिति हो गया है। अब तक तो ठंड आ जाना चाहिए था, अभी तक तो गर्मी है नॉर्थ में। ये हम सबको देखना पड़ेगा और आज हम हाथ नहीं किसी से उठवाएंगे, लेकिन कहेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को न्यूट्रल करने में हम योगदान दें। क्या सही है? नहीं, आवाज नहीं आई। अच्छा, कौन कौन इसमें योगदान देना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं तो। सब लोग। देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, क्लाइमेट चेंज पर जब पेरिस वार्ता हुई थी, ये सारे लोग भाग गए थे, अमेरिका जैसे देश। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 450 शायद गीगावाट, 450, मैं 450 गीगावाट। लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन आज रिन्यूएबल एनर्जी में हमने संकल्प लिया है कि 2030 तक केवल एक्सपोर्ट और मार्केट साइज को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि कार्बन न्यूट्रल भी करेंगे। उसमें सबका योगदान होना चाहिए।
जैसे राम और रावण के युद्ध में गिलहरी भी अपने को ले जा करके राम सेतु में वो योगदान देने का काम किया था, उसी तरह से अभी चर्चा हो रही थी। भारत सरकार कमिटेड है भारत के किसानों के, और मैं देखता हूं कि जब 2014 में हम आए थे तो 3700 रुपये क्विंटल सीड कॉटन का दाम था एमएसपी। आज 7,710 है, और लॉन्ग लेंथ का 400 था, आज 4,000 था, आज 8,110। यही है ना? तो किसानों के लिए हम कमिटमेंट थे कि किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी हमने मार्केट, जबकि इस बार 11% का जो ड्यूटी था इंडस्ट्री के आग्रह पर, हमने उसको भी खोल दिया। प्रोक्योरमेंट भी हम लगभग विश्व मार्केट गिरा हुआ, अभी भी 5,500 यही होगा, क्या है 5,500, 6,000 सीड कॉटन का 6,000, लेकिन हम तो 8,000 पे खरीद रहे हैं। ये मेरा कमिटमेंट है देश के किसानों से। लेकिन आज हमारे सामने चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे सामने चैलेंज है, दुनिया आज 70% जो फास्ट फैशन और कपड़े पहन रहे हैं वो सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं। ये अलग बात है, भारत उल्टा है, कोई डेटा है 60-40 पे पहुंच गया है, कोई कहते हैं 70-30। एग्जैक्ट फिगर आप और हम मिल करके देखेंगे। लेकिन ये तो चुनौती हो गया। अपॉर्चुनिटी ये है कि जब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल फाइबर की बात करता है और इसी दिल्ली के अंदर जब इस पर डिस्कशन रखता है तो दो ही सस्टेनेबल फाइबर में आता है, एक रिसाइकिल कॉटन और एक रिसाइकिल पेट बोतल प्लास्टिक। लेकिन भारत, ये बात अलग है कि विश्व के कुल कल्टीवेशन का हम 40% हम जरूर लगाते हैं कॉटन, लेकिन दुनिया 2,200 किलो लिंट कॉटन पे जाता है तो हमारा एवरेज 450 का होता है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपकी पहल पे कॉटन मिशन भी आ गई, जिसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है। तो सस्टेनेबल फाइबर
वाले दिन में तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं ये भारत ही लीड लेगा। यहां आसिया के भी लोग बैठे हैं, क्योंकि आज भी मेरी बात हो रही थी बगल में कि कॉटन, अश्विन जी कह रहे थे कि भले सिंथेटिक स्किन टच जितने वेयरिंग में है प्रोडक्ट, वो कॉटन से बेटर किसी का नहीं। सिंथेटिक अंडरवियर में अंडर चल रहा, अंडर गारमेंट्स में बेडशीट चल रहा है, लेकिन जो एफोर्डेबल है वो कॉटन बेडशीट को ज्यादा लाइक करते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो दुनिया में अभी हम बात कर रहे थे कि जो सस्टेनेबल फाइबर की बात हो रही है, हम लोगों ने चर्चा भी की है। अभी हम न्यू एज फाइबर में, सस्टेनेबल फाइबर में दो ही फाइबर यूनाइटेड नेशन के पास में है, रिसाइकिल फाइबर। लेकिन आपके पास कई फाइबर हैं जो आने वाले दिन में दुनिया को नया फाइबर देने में हम सक्षम हैं। वो फाइबर, मिल्क बीट का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। मिल्क बीट का नाम कौन लोग सुने हैं, जरा हाथ उठाएं। ये मिल्क बीट निट्रा के साथ भारत सरकार, और आने वाले दिन में ये मिल्क बीट किसान को भी, जो कॉटन में किसान रोते हैं, किसान को भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक देगा। और ये पश्मीना से पतला है, पश्मीना वुलन जो होता, और सिंथेटिक से हल्का, और कॉटन से 1.5 गुना अधिक पानी को सक करता है। अब ऐसी स्थिति में वुलन के साथ, सिल्क के साथ, और गर्म है ऊन से अधिक, क्योंकि होलो फाइबर। आज है होलो फाइबर पॉलिस्टर में भी चल रहा है। तो ये एक ऐसा फाइबर है जिसका मल्टी डायमेंशन पर इसके उपयोग होंगे। उसके जेनेटिक रिफॉर्म पर भी हम कॉटन और मिल्क बीट पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया को भारत सरकार काम कर रही है इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, जो दुनिया को आश्चर्य में डालेगा। समय जो लगे, क्योंकि रिसर्च थोड़ा समय लेता है। अब कॉटन का नाम सुनो बड़े शान के साथ। एक का नाम क्या है? गीजा, इजिप्ट का। अमेरिका का क्या नाम है? सुप्रीमा। ऐसे भी सुप्रीमा है, उसके प्रेसिडेंट भी सुप्रीमा है। तो लेकिन मेरा
कस्तूरी, मैं धन्यवाद दूंगा पास्ट मिनिस्टर हमारी बहन स्मृति जी को, जो उन्होंने कस्तूरी कॉटन को एक नाम दिया। अब ये ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी केवल विभाग का नहीं, आप सबों की जिम्मेदारी है। कहीं जाइए बाहर, सुप्रीमा और गीजा का बड़े बड़े ब्रांड अलग शेल्फ रखे हुए हैं। अब बड़े बड़े लोग 2 गुना दाम में पहनते हैं तो ऐसे भी अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है तो पैसे से भी अच्छा लगता है। लेकिन कस्तूरी का हम ब्रांडिंग के लिए हम दोनों को कहेंगे, सिटी को भी कहेंगे, टैक्स प्रोसीड को। हम रवि जी से भी कहेंगे और सिटी से भी कि इसको ब्रांडिंग के लिए हम सब पहले जो हमारा डोमेस्टिक ब्रांड है वो इसका प्रोडक्ट को बना करके दुनिया के सामने दे, अपना ब्रांड के साथ, क्योंकि उनके ब्रांड के साथ देंगे ठीक है। वो अगर 1 लाख पीस हमारा ले रहे हैं तो हम कहें कि 1000 पीस मेरा, ये मेरे ब्रांड से रखो। ये काम जब तक नहीं होगा तो ये नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही? ऑडियंस से कुछ आए आवाज, ये मंच वालों से मुझे नहीं, ऑडियंस का प्रेशर ही मंच पे पड़ता है। क्या आप लोग इनको प्रेशर दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं? अब दूसरा, जिसे लीलन हमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। हमारा क्राइजेप्स आईसीआर की संस्था है, इतना बढ़िया, इस बार उसको हम जयश्री के साथ कोलैबोरेट करके जो हमारे प्रोडक्ट और जो बेल्जियम या बाहर से इंपोर्ट वाले एट पार ही नहीं, बेटर देन इंपोर्टेड लीलन। और मेरा सौभाग्य है कि इस फेज में इस टीम को ये दायित्व मिला है। इसके पहले इसको प्रमोट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने हिमाचल से लेकर के अगली बार अरुणाचल तक और बंगाल से लेके साउथ तक हम सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके एस्टैब्लिश हो गया है इसको, और सीड मल्टीप्लिकेशन में लगे। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले दिन में हम केवल इंपोर्ट को नहीं कम करेंगे, बल्कि लीलन एक्सपोर्ट करेंगे फाइबर, ये मेरा लक्ष्य है। मिल्क बीड, लीलन, ये सब आप ही के जिम्मे जाने वाला है।
सिटी और आप ही लोग नेचुरल फाइबर है, आखिर इसको प्रमोट करने का काम। तीसरा फाइबर, लीलन से तो सब लोग खुश रहते हैं, लीलन का साड़ी हो जाए, ड्रेस मटेरियल हो जाए, शर्ट हो जाए। हमारे पीएस है वो लीलन का शर्ट पहनते हैं और कुछ नहीं करते, वही शर्ट पहनते हैं, कहते हैं बड़ा कंफर्टेबल। तीसरा फाइबर हम रेमी फाइबर के प्रोडक्ट को कौन कौन लोगों ने देखा है, छुआ है, जरा वो हाथ उठाए। 1 2 3 4, पूरा हाथ उठे, लोग देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने। ये रेमी फाइबर हम अभी बगल में बात कर रहे थे, आखिर रेमी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? और आज भी चाइना और वियतनाम से उसके फाइबर आते हैं, उसके प्रोडक्ट बनते हैं और दुनिया में लगभग $1.5 बिलियन का मार्केट है। और प्रोडक्ट का फाइबर कम है, तो हम रेमी को भी इस बार आईसीआर के साथ मिलकर के प्रमोट कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है रेमी और फ्लैक्स यानी लीलन, ये दोनों आने वाले दिन में, और मिल्क बीट, ये तीनों फाइबर, मिल्क बीट और रेमी, क्योंकि मुझे मिल्क बीट पर जब मैं लुधियाना में गंगा एकड़ा, क्या है गंगा गंगा एक्रोवूल, उनके साथ जब मैंने एक ट्रायल किया तो केवल 20%, 28 माइक्रोन का मैरिनो वूल के साथ उन्होंने मिक्स किया। उसकी कीमत $2.5 से $3 बढ़ गया। उसके फिल कराए हुए बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना, लोगों ने 35 माइनस डिग्री तक, ये अगर कोई जैकेट है बना हुआ, हमने रजाई बना के लद्दाख ले गया, तो ये प्रोडक्ट सब टेस्टेड हो रहा है। ये बात है कि देश के अंदर अभी ब्लेंडेड की मांग बढ़ रहा है, 60-40, 70-30, 60-40 ज्यादा पॉपुलर। हो सकता है मैं अज्ञानता में बोल रहा हूं, मुझे जो ज्ञान है उतना मैं बोल रहा हूं, क्या ललित जी, कोई गलत तो नहीं बोल दिया? 60-40 यानी 40% सिंथेटिक और 60% कॉटन। क्योंकि मैं महिलाओं के साथ मिलके काम करता हूं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, उनकी फीलिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उत्तर भारत में, खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाएं साड़ी पहनती तो पेटीकोट पहनती, जो एफोर्डेबल नहीं है वो 60-40 पहनते। मैं उनसे पूछता, वो एक हमारा
ट्रेनिंग सेंटर है सिलाई का, महिलाओं को ट्रेनिंग, बड़ा 150 उसमें मशीन है, कई चीज है। वो महिलाएं कहती हैं कि प्योर कॉटन का जब हम पेटीकोट लेते हैं तो उसकी पहनने में अच्छा लगता है। यानी ये भारत के गरीब महिलाओं की फीलिंग है। तो कॉटन कभी मर नहीं सकता। ये मैं आज विश्व कॉटन दिवस पर मैं ये बात कह सकता हूं। आने वाले दिन में जो भी दुनिया का व्यक्ति अफोर्डेबल व्यक्ति होगा, जो अफोर्ड कर सकता है, कुछ सीजन में कॉटन को ही प्रेफर करेगा। ये मेरा अपना मानना है। और मैं अंतिम अपनी बात कह करके कि कस्तूरी में सबका सब है, लेकिन गांव की कहावत है, घी का लड्डू अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो अच्छा लगता है। अपना बेटा दिव्यांग भी हो तो दूसरे 2 पैर वालों से ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे ये अमेरिका का सुप्रीमा हो, चाहे इजिप्ट का गीजा हो, मेरा कस्तूरी आने वाले दिन में क्वालिटी भी, ट्रेसेबिलिटी भी, प्योरिटी भी, और जिसका सर्टिफिकेशन भी यही लोग करते हैं। और ये सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी और प्योरिटी, ये 3 चीज हमारे स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा योगदान देगा इसको ब्रांड में। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि सिटी और टैक्सप्रोसिल ये दोनों मिलकर के आज का थीम भले ही यूनाइटेड नेशन दिया हो, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, हम आपके साथ हैं टेक्नोलॉजी में भी, क्लाइमेट में भी और ट्रेसेबिलिटी में भी। और हम तो कहते हैं इस बार का थीम, इसके साथ हम डबल प्रोटेक्शन की ओर ले जाने में हम ये कमिटेड हों। और मेरे मन में तो होता है, क्या इंडस्ट्री फार्मर के साथ नहीं जुड़ सकता है क्या? अगर जिस प्रदेश में आपका एक जिले में क्वालिटी सीड की चिंता करे, क्वालिटी सीड पहुंचाना, आपने कहा कि सवेरे सीड ग्रोअर भी आए थे। अगर ये सरकार के साथ जुटे, और मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूं, आप इसे प्रेशर नहीं मानेंगे, मेरा इमोशन मानेंगे। मैं इमोशन के साथ आपको फार्मर के साथ जोड़ना चाहता हूं। हर इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, अरे 9-10 स्टेट में तो केवल काम है, 5-7 स्टेट में आपका मेजर काम है। जहां आपका काम है, एक जिले से तो जुट जाए। जिस दिन जुटेंगे, किसानों की ताकत ही नहीं बढ़ेगी, किसानों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग बढ़ जाएगा। और ये देखिए, एक किसान ठाकरे पीछे बैठे हुए हैं और अकोला के, तो मैं ये कह करके अपनी
कहता हूं कि आज के दिवस में जो थीम है उस थीम के साथ हम क्वालिटी सीड, सोइंग, पेस्टिसाइड और प्रोटेक्शन डबल ट्रिपल करने का भी संकल्प हम लें। ये मैं विश्व कॉटन दिवस पर हम आप सब को अपना भागीदारी जताने के लिए निवेदन कर रहा हूं। मंच पर चाहे रवि जी हों, चाहे अश्विन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, चाहे उससे जुड़े हुए, और ये भी कहूंगा आपके मेंबरशिप भी बढ़नी चाहिए। मैं बात कर रहा था, और मेंबरशिप तब बढ़ेगा जब आपके मेंबर को लगे कि आप उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।